Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of the Genetics and Molecular Biology chapter 2 transformation. So we are at the almost end of this chapter, that is the significance and the factors that are going to affect the transformation. Okay, so if you remember, okay, we have seen about the transformation, that how it has been discovered, and then again we have learned how the transformation occurs in the gram positive and the gram negative bacteria. Okay, already I have told you about the important thing of the transformation, that is the competence, how competence plays an important role for the transformation. If the bacteria is not being competent, obviously it can't undergo the transformation. The thing I forgot to tell you was that the competence is not like, we can't always make it naturally, because not all the bacteria are able to take up the foreign DNA, इसलिए सभी बैक्टीरिया competent नहीं होते. ठीक है, उनको competent होना पड़ता है. अब जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर है, ओके, इट इज़ नॉट बीन ऑकरिंग इन द ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, सब में नहीं होती है, सिलेक्टिवली होती है. प्लस उनको होने के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, they need a phenomenon known as competence, that is the ability to take up the foreign DNA. ठीक है, foreign DNA भी कैसा, not from the cell itself but from the extracellular environment. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी प्रोसीजर, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें सेल सेल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, इन दिस प्रोसीजर द ओनली थिंग इज़ दैट द सेल नीड्स टू बी competent. अगर वो competent नहीं है, देन नो use of the DNA which has been present in the in the extracellular environment. कितने भी DNA हो, कुछ भी हो, अगर सेल competent नहीं है, it can't take up the DNA and it can't undergo the transformation. So basically the important factor that is been required for the transformation is the competence. Okay, now the another thing is that the transformation is not, competence is not always present in the bacteria. Okay, they may need some kind of the factors that induce the this competence in them. Okay, not always the thing is that they have this competence naturally in them. So when they have the factors around them, then only they can develop the competence. The thing is that now how the competence is been generated. So I have given a very very important example for you. I have told you, when the bacteria is near to its stationary phase, okay, it is in the latter phase of its log phase. Okay, जो आपको ग्रोथ का अगर याद होगा, तो उसमें जो लॉग फेज है, उसके एंड फेज में अगर होगा बैक्टीरिया, तब कंपेटेंस इजीली जनरेट करता है. ठीक है, इसके अलावा जो है, दे कैन जनरेट द कंपेटेंस जब बैक्टीरिया इज इन द काइंड ऑफ डेंजर. ओके, अगर कोई DNA की रिक्वायरमेंट है, द DNA इज बिन डैमेज और समथिंग, देन इट कैन टेक अप द फॉरेन DNA. ओके, another thing is that if the bacteria is lacking the nutrients around it and the cell density is a maximum, okay, around 10 raised to 7 to 10 raised to 8, then also it can take up the foreign DNA. Okay, and even for the sake of the pathogenicity, okay, as I told you in the Griffith experiment also, to transform the non-pathogenic cell into the pathogenic also, the transformation plays an important role, and that's why the competence plays an important role. Okay, so these are the some things that are required for the competence. Now competence is not always generated naturally. So sometimes if we need to do the competence, like suppose E. coli का मैंने आपको बताया था, they does not have the natural transformation ability, so we can develop it artificially. तो कैसे, तो लैब में किया जाता है. फिर फॉर एग्जांपल CaCl2 का यूज़ करके भी कंपेटेंस जनरेट किया जाता है. बैक्टीरिया को इलेक्ट्रोफोरेशन की मदद से भी हम कंपेटेंस जनरेट कर सकते हैं. कंपेटेंस का मेन टारगेट होता क्या है कि
जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन, उसमें पोर्स फॉर्म किए जाते हैं ताकि ये फॉरेन डीएनए अंदर आ सके, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली भी किया जाता है इनसाइड द लैब, ताकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें उस बैक्टीरिया में म्यूटेशंस इंड्यूस करने हैं, कम्पिटेंस इंड्यूस करना है, देन वी कैन डू दैट। अभी ये आपके पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो जस्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ द नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ हमने सीखा, ठीक है, हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमने सीखा कि कंपेटेंस क्या है, हमने सीखा कि ग्राम पॉजिटिव में कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राम नेगेटिव में कैसा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों है, ये भी इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एज आई टोल्ड यू, होता क्यों है कि वायरुलेंट जो बैक्टीरिया है, सॉरी नॉन वायरुलेंट जो बैक्टीरिया, मतलब अपने सीधे साधे बैक्टीरिया, नॉन हार्मिंग बैक्टीरिया, नॉन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उनको जो है वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया यूज़ करते, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैपिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जेनेटिक मैपिंग, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले, इट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, तो हम ये देखेंगे इन डिटेल कि कैसे किया जाता है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, the frequency of the transformation of the two genes at the same time is an indication of the distance between this। मतलब ये भी चीज़ आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके लास्ट पॉइंट में है, लेकिन आपको बता देती हूँ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन दो जीन्स का हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जीन्स का हुआ है, अगर दो जीन्स का हुआ है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका जो डिस्टेंस है जीन का, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही थिंग जेनेटिक मैपिंग में यूज़ किया जाता है, जो हम इन डिटेल देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, पहली चीज़ तो नॉन वायरुलेंस को वायरुलेंस में कन्वर्ट करने की, दूसरी जीन मैपिंग में यूज़ किया जा सकता है, और तीसरी चीज़ ये कि हम जो है दो जीन्स में जो डिस्टेंस है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे करते हैं वी आर गोइंग टू सी, ओके। नाउ द मेन थिंग अबाउट दिस लेक्चर इज़ दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। मतलब कोई भी प्रोसीजर होती है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर, इवन आवर रेस्पिरेशन, तो उसको अफेक्ट करने वाली चीज़ें होती है। लाइक हमारे रेस्पिरेशन की बात करें तो O2 CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो इधर उधर हो जाए तो हमारा रेस्पिरेशन इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड, ओके। सो लाइक वाइज ट्रांसफॉर्मेशन को भी होने के लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स का रोल है कि ये इधर उधर हो जाए तो शायद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर बिगड़ सकती है, ठीक है, या ये नॉर्मल रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो पाएगा। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज़ लास्ट सेकंड पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स, तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर है इट इज़ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डीएनए। डीएनए की मॉलिक्यूलर साइज, एक जो हमने पहले भी इसके बारे में कहा था मैंने आपको कि डीएनए की मॉलिक्यूलर साइज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जनरली डीएनए विद द 3 lakh to 8 million Daltons have been shown the successful transformation। मतलब क्या कि इतने जो है मॉलिकुलर वेट के डीएनए, अराउंड 3 lakh to 8 million Daltons, ओके, इतने मॉलिकुलर वेट का डीएनए ही सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डीएनए कॉन्सेंट्रेशन। जितने ज़्यादा डीएनए होंगे एनवायरमेंट में उतना ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब बैक्टीरिया को जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डीएनएज होगी उसके पास, तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेल्स को जो है लेट लॉग फेज में होना पड़ता है फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि बैक्टीरिया जो है एक तो स्टेशनरी फेज के थोड़े से पास या फिर लेट लॉग फेज में होने चाहिए फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो वहाँ पे होंगे तो वी कैन से कि उनकी ग्रोथ भी ऑप्टिमम होगी, न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी एनवायरनमेंट में ऑप्टिमम होने चाहिए, न्यूट्रिएंट जो है वो थोड़े से ख़त्म होने के वी कैन से कगार पे आएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया अगर ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करेगा तो वो इट कैन हेल्प देम ओनली, ठीक है। ये भी चीज़ मैटर करती है कि बैक्टीरिया कौन से फेज़ में है ऑफ द ग्रोथ, और होने कौन से फेज़ में चाहिए, लेट लॉग फेज या तो स्टेशनरी फेज। नाउ द डीएनए साइज एज आई टोल्ड यू। देन कंपिटेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कंपिटेंस क्यों, क्योंकि अगर कंपिटेंट नहीं होगा बैक्टीरिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर वो डीएनए लेगा ही नहीं अंदर तो
ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसलिए कंपिटेंट उस सेल को होना ही पड़ेगा फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन. देन वन मोर फैक्टर इज दैट द DNA साइज, ओके, एंड DNA स्टेट, मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA होना चाहिए विथ एटलीस्ट एज आई टोल्ड यू साइज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए DNA का, तो इजीली जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. सो दीज आर सम फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू इफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन. DNA का साइज, ठीक है, कंपेटेंस एंड concentration of the DNA, and the cell should be at the late log phase. ठीक है, these are some kind of a factors that are going to play important role in the transformation. तो इनका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है for the successful procedure of the transformation. So that's about it. ठीक है, तो ये लेक्चर का आपको मोटो ये था कि आपको बताना है मुझे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस पर कौन से फैक्टर्स का जो है इम्पोर्टेंट रोल है, अलॉन्ग विद दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट इट. आई होप यू अंडरस्टूड द फैक्टर्स about the factors that are going to affect the transformation, and kindly do comment the attendance, and yes, keep watching the lecture, and if you have any query, any doubt related to any point, contact me. Okay, thank you.